Today's video is related to business mathematics. It is used full for BCom first year and BBA student. And the topic is discount, commission and brokerage. Now the first one, discount. Okay. Now some question in our mind. First question is, what is discount? Right? Now the second question, discount is allowed for what purpose? This is the second question. Now third question, how many kinds of discounts? And last one, which kinds of discount are allowed in this chapter? Okay, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जो भी वीडियो है उस वीडियो में आप लोगों को मैं बुक का राइटर का नाम बताता हूं. दिस इज अगेन SM Shukla, राइट नाउ बिजनेस मैथमेटिक्स. ओके, अगेन फर्स्ट, व्हाट इज डिस्काउंट? दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ डिस्काउंट. राइट नाउ, एनी टाइप ऑफ डिडक्शंस allowed to vendor to his customer, then it is called a discount. Okay. Now the second thing, what purpose? Sorry, discount allowed for what purpose? Now the two very easy purpose today discuss with you. Now the first purpose is increases of selling. Right now. Now the second purpose, encourage to his customer for early payment and payment in cash. Okay, this is the two purpose for discount allowed. Okay, now the third question is, how many kinds of discounts? There are total 8 kinds of discounts. Okay, this is also there in your book. Now the first, trade discount, second, cash discount, third, commodity discount, commercial discount, fourth one, fifth one, banker discount, sixth one, money lender discount, and the seventh, true discount, and the last, mathematical discount. But this is the question, which type of discounts are allowed in this chapter? Two types of discount. First, trade discount, and the second, cash discount. Right? Again, what is the question? What is trade discount? Or second, what is cash discount? That means the definition of both type of discounts. Okay. Now the trade discount. Such type of discount which producer allowed to wholesaler, wholesaler allowed to retailer, retailer allowed to his customers on market price, right? On market price of an article, then it is called trade discount. Now, trade discount, rate of trade discount is always fixed. It is a very important. Trade discount rate is always fixed. Okay. Now the second, cash discount. Simple. Any type of reduction on market price on or selling price of an article, okay, to his customer. For what purpose again? For what purpose again? Encourage to his customer for earlier payment or pay in cash. Then it is called cash discount. This is the simple part of theory of this topic. Okay. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं. आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये डिस्काउंट जो होता है वो डिस्काउंट में किस तरीके के फॉर्मूला यूज होते हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट, amount of
trade discount are equals to sales into rate of trade discount divided by 100. This is the first part. Okay. Which kinds of items are included in this formula? 3 items: amount of trade discount, sales, and rate of trade discount. That means ये फॉर्मूले से आपके कितने आइटम्स कैलकुलेट हो सकते हैं? 3 आइटम्स कैलकुलेट हो सकते हैं. सपोज दैट amount of trade discount is not given and the sales and rate of discount is given. Now to find out the value of amount of discount. Okay, that means 2 items are known there to find out this value. Okay, now second question. Amount of trade discount is given, sales is given. To find out the rate of trade discount. Clear? 2 items are there. अगर ये नोन है तो ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे विथ एग्जांपल, राइट? एंड सपोज दैट अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन. नाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेल्स, अगेन दैट मींस 2 नोन वैल्यूज आर देयर, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्स again in this formula, right? Second, cash discount are equals to sales after trade discount into rate of cash discount divided by 100, right? Same as it is for trade discount. Okay, cash discount are equals to sales after trade discount if into rate of cash discount whole divided by 100. Again 3 items are there in this formula: cash discount, sales, and rate. But what is the difference between both the formula? This is जो कैश डिस्काउंट अलाउड होगा वो याद रखेंगे आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होगा. कैश डिस्काउंट पहले अलाउड होता है फिर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होता है, ये गलत है. तो हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउड trade discount, after trade discount the remaining sales जो बच जाता है, rest of the part of the sales that is called remaining sales. ओके, उसके ऊपर आपको कौन सा डिस्काउंट अलाउड होता है? कैश डिस्काउंट अलाउड. व्हाट अमाउंट पे बाय बायर टू हिज सेलर? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितना अमाउंट बायर अपने सेलर को पे करेगा. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला? ये कोई फॉर्मूला नहीं. सपोज कीजिए कि आपने 10,000 रुपए का सामान परचेस किया. ओके, 10,000 रुपीज का आपने सामान परचेस किया. नाउ द ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड rupees 1,000. Now the rest of the part of the sales 9,000, right? And again cash discount will be allowed rupees 1,000. Therefore the rest of the part of the sales is 9,000 minus 1,000 are equals to 8,000. This amount, that means rupees 8,000 amount is received by the seller and paid by the buyer.
चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वो एग्जांपल्स क्या हैं? सपोज कीजिए कि 3 कंडीशंस हम लोग चूज करते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। आप एक दुकान में जाते हैं, राइट? आप एक दुकान में गए, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन 1, आप एक दुकान में जाते हैं, आपने एक गुड्स को परचेस किया, पसंद आया आपको, आपने टैग में प्राइस देखा 1000, दिस इज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ओके, जब आप दुकान के अंदर घुस रहे थे तो ऊपर बोर्ड में आपने देखा था 10% डिस्काउंट अलाउड, एट द रेट 10% डिस्काउंट अलाउड। ठीक, क्लियर? अब ये क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा। फर्स्ट, इट में भी आपको करना क्या है, आपने एक गुड्स परचेस किया, एक आर्टिकल आपने पसंद किया, एंड द कॉस्ट प्राइस इज आर्टिकल इज 1000, और आपने दुकान के बाहर देख लिया था, आपने दुकान शॉपकीपर से बोला कि भैया ये मुझे कितने का पड़ेगा। ठीक है, दैट मींस दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। मैं कितने का पड़ेगा, दैट मींस व्हाट अमाउंट विल बी पे बाय द बायर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड, मेरे को डिस्काउंट कितना मिला। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोल दिया कि आपको 900 रुपए पे करना है, आपने 900 रुपए पे किया और आप घर चले गए। इट इज नॉट गुड थिंग। आपकी सोच क्या होनी चाहिए कि मुझे छूट कितना मिला, दैट मींस कितना डिस्काउंट अलाउड। ठीक, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर? फर्स्ट, what amount of discount will be allowed by the seller? This is the first amount of trade discount are equals to sales, that means 1000. Okay, 1000 into rate of trade discount, it is always fixed 10%, and divided by 100. Now rupees rate, what is this 100? 100 is the amount of trade discount. This is amount of trade discount. That means आपको कितना डिस्काउंट वो दे रहा है, 100 रुपीज दे रहा है। What will pay? SP minus amount of discount, say 1000 minus 100 are equals to 900. Clear? This is the condition number 1. This is the first question. हम लोग सिर्फ ऐसे ही समझेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है। अगर आपके पास जब मैथ्स आ जाता है तो आपको टिपिकल लगने लगता है, और ये टिपिकल होता नहीं है। अगर आप खुद इंप्लीमेंट करें अपने ऊपर तो ये अपने आप इजी हो जाता है। ओके, सेकंड कंडीशन, अगेन आप एक नियरेस्ट, मतलब आपके पहचान का दुकान है, मान के चलिए आप उसकी दुकान में जाते हैं, फिर से एक आपने आर्टिकल पसंद किया, आपने टैग में देखा, राइट? आपने टैग में देखा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, नाउ द 1000 अगेन, दैट मींस 1000 कॉस्ट प्राइस इज गिवन। बाहर तो डिस्काउंट का बोर्ड ही नहीं लगा था, आपने उससे पूछा कितने में देगा यार, अरे तेरे लिए क्या बात है, तू 900 रुपए दे दे, राइट? 900 रुपए दे दे, 900 रुपीज, दिस अमाउंट पेड बाय द बायर।
आप अपने सामान को लेकर घर चले गए। बट व्हाट क्वेश्चन इन योर माइंड, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे कितना छूट मिला, दैट मीन्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। दिस इज द अगेन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर। ओके, कितना डिस्काउंट मिला, 1000 के सामान के बदले में आपने कितना पे किया, 900, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑफ रुपीज 1000, 1000 minus 900 are equals to 100. Now again, what is the second question, rate of discount, आपको कितना डिस्काउंट का रेट मिला, किस डिस्काउंट के रेट पर आपको ये 100 रुपीज मिला। ओके, what is the data is given, this is the selling price is given and the amount of discount is also given. To find out the rate of discount according to question, same as it is for this formula, right? Amount of discount is given 100, R equals to sales is 1000 into rate of discount is not given, divided by 100 by cross multiplication, right? This is 100 into 100, R equals to 1000 into R, and the next step divided by 1000. Therefore R equals to 10%. यही सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको समझना कैसे, आप उस क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, यू आर बायर, और जो शुक्ला जी हैं, दैट मीन्स द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस बुक, वो हमारे लिए क्या होंगे, सेलर होंगे। उस कंडीशन में आपको सिर्फ समझना है, अपने आप क्वेश्चन पता चलेगा, सॉल्यूशन पता चलेगा कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये जो 3 कंडीशन बता रहा हूं इससे ज्यादा आपके पास क्वेश्चन में नहीं आए। ठीक है, नाउ थर्ड वन, कंडीशन नंबर 3। अब आप एकदम पहचान वाले दुकान में गए ना, आप बाहर बोर्ड में देखा कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, ठीक, आप दुकान के अंदर चले गए, आपने फिर से एक आर्टिकल पसंद किया, उसमें आपने देखा तो आपके पास टैग नहीं था, दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस उसमें नहीं दिया हुआ था कि वो जो सामान है उसकी कीमत कितनी है, वो उसमें मेंशन नहीं था, राइट। इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस फॉर बायर सेल, ओके, द कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन बिकॉज टैग जो लगा रहता है वो उस आर्टिकल में नहीं लगा हुआ था। अब आपने पसंद किया, अपने फ्रेंड्स के पास गए, बता भाई कितना रुपए देना है, तो बोला कि यार 900 रुपए दे दे यार, दैट मीन्स अगेन 900 पेड बाय बायर, ओके, 900 रुपए दे दे, आपने 900 रुपए दे दिया। अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन इन योर माइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, अरे यार बस इतने डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, तो उसने कहा यार 10% डिस्काउंट दिया हूं तेरे को। नाउ द रेट ऑफ डिस्काउंट इज मेंशन्ड, रेट ऑफ डिस्काउंट, उसने कहा 10% डिस्काउंट दिया हूं यार तेरे को, बाकी रुपए तो भी नहीं देता हूं, ठीक। अब आपने पता चल गया कि 900 रुपए देना है और 10% डिस्काउंट भी हो गया, मगर इंपॉर्टेंट है कि जो गुड्स आपने पसंद किया था उसका सीपी था कितना, उसकी कीमत थी कितनी, ओके। अब ये कैसे सॉल्व होगा, 900 पेड बाय द बायर, आपको मालूम है कि आपने 900 पे किया है, आपको 10% डिस्काउंट मिला है, ओके, और आपके पास
सेलिंग प्राइस, सेलर का जो है सेलिंग प्राइस वो मेंशन नहीं है, तो आपने कितने वाला सामान परचेस किया है, दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप कैसे सोचते हैं? आपको एसपी मालूम नहीं था, ठीक, उसमें आपने डिस्काउंट पे किया, दैट मींस माइनस जितने का भी सामान रहा होगा आपको मालूम नहीं क्योंकि टैग में लिखा हुआ नहीं था, मगर डिस्काउंट आपको मिला है, वो बोला 10% दे रहा हूं यार तेरे को डिस्काउंट, ओके, आपने पे किया, ठीक। सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स, क्योंकि मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको एक्स से नहीं बना, 100 से नहीं बना सकते, मगर मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो चीजें बताऊं जिस चीजों से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राइट। 100 से भी बताऊंगा, पहले सीखिए, क्योंकि हमको मालूम नहीं था। दैट मीन्स लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी रुपीज एक्स, नाउ अगेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, both are the depends upon selling price, right? Trade discount, sales into rate, okay, तो जो amount of discount होता है या rate of discount होता है, both are depends upon sales। तो हमने sales कितना assume किया है, x। now what is the rate of discount, 10%। now 10x by 100, according to theory sales is x into rate 10 divided by 100, say 10x by 100, and what will amount pay by the buyer, 900। आपने इसी तरीके से पे किया, जितने का सामान रहता है उसमें जितना डिस्काउंट आपको मिलता है उतना कम कर देते हो, कम कर देते हो, दैट मींस सब्ट्रैक्ट कर देते हो, सब्ट्रैक्ट दैट मींस माइनस नेगेटिव आर इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी पे, ओके। एलसीएम ले लीजिए, 100 100x माइनस 10x आर इक्वल्स टू 900, ओके। देयरफॉर 90x by 100 are equals to 900। now by cross multiplication x are equals to 900 into 100 divided by 90, now are equals to 9000, sorry this 1000, ठीक। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को चूज किया था, सिर्फ क्वेश्चन एक ही चूज किया था, दैट मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1000, डिस्काउंट कितना अलाउ करना है, 10%, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको सिर्फ अपने लैंग्वेज में बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, राइट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं फिर से आपके सामने रीड कर रहा हूं, दिस इज द एस.एन. शुक्ला एंड द बिजनेस मैथमेटिक्स। नाउ द एक्सरसाइज ए, आज हम लोग ए करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बी में चलेंगे। Now the exercise A, question number 2. A TV dealer sold a TV set for 9,500. The selling price of which was rupees 9,840. Okay. Find the rate of trade discount. भाई क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो तीन कंडीशन मैंने बताया इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड करते समय सोचना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अ टीवी डीलर सोल्ड अ टीवी सेट फॉर 9,500, ओके, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच वाज रुपीज 9,840। एक टीवी डीलर है
वो अपने एक टीवी सेट को 9500 रुपीज में क्या करता है, बेच देता है, जबकि उसकी कीमत कितनी थी, 9840। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस वन एंड दिस वन। हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे किया था, क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आया था, ये मैंने दो बताया था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड द सेकंड रेट ऑफ डिस्काउंट। क्लियर? ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। Now the question number 2 and given data. Again, क्या क्या चीज है आपके पास, 9500 बेचा आपने, फर्स्ट प्राइस कितने का था वो, 9840। ठीक, अब इंपॉर्टेंट है कि आपको रेट ऑफ डिस्काउंट डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ। ठीक है, नाउ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आर इक्वल्स टू 9840 माइनस 9500। क्लियर? आइए कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 9840 माइनस 9500, 340। नेक्स्ट स्टेप, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो मैंने रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए कोई फॉर्मूला अलग से आप लोगों को नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया है, उसको इंप्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आर इक्वल्स टू सेल्स इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। अब आपको बताना है कि अमाउंट पुट करना है, कौन सा अमाउंट पुट होगा और कौन सा अमाउंट पुट नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, 9840 और 9500। ठीक है, 9840 माइनस 9500, 340। चलिए बताइए, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्लियर, 340। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, आपको एक दुकान में, आप एक दुकान में गए, आपने एक आर्टिकल पसंद किया एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, आपने कौन सा टीवी पसंद किया जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 9840। क्लियर? इसी अमाउंट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिला ना भाई। हमने जो क्वेश्चन लिया था कि आपने एक आर्टिकल पसंद किया, उसका टैग देखा तो उसमें 1000 कॉस्ट था, और आपने बोला दुकान वाले को कितना पे करना है, तो बोला कि 10% डिस्काउंट है आपका। तो आपने क्या किया, जो मार्केट प्राइस था उसका 10% कम कर दिया। क्लियर? तो मार्केट प्राइस क्या है, 9840। ओके, 9840। हमेशा याद रखें कि सेल्स कौन सी वैल्यू को लेके चलेंगे, जिस आर्टिकल को आपने पसंद किया और जो अमाउंट उसके टैग में लिखा हुआ था, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस। दैट मीन्स डिस्काउंट इज अलाउड ऑन मार्केट प्राइस, selling price and invoice price. Okay, into rate, I don't know, divided by 100 by cross multiplication, right? 340 into 100 here are equals to 9840 into R। देखो एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे होगा, राइट? चलिए आइए, नाउ आर इक्वल्स टू
340 into 100 डिवाइडेड बाय 9840। चलिए आइए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। कितना आया हमारा 340 100 डिवाइडेड बाय 9840। दिस इज 3.455। आप इसको राउंड फिगर में लिखिए। क्लियर? बहुत आसान था। तो इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने जो कंडीशंस आपको बताए थे आपने कितने ध्यान से सुना, और अगर वो कंडीशन अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं और उसके वैल्यूएशन को नोट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि ये डिस्काउंट का चैप्टर आपको, डिस्काउंट के साथ साथ कमीशन का चैप्टर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको तीन कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अ पब्लिशर डिक्लेयर्स 10% बुक डिस्काउंट। जो मैंने एग्जांपल लिया था कि हम दुकान के अंदर जाते हैं तो बोर्ड में लिखा है 10% अलाउड है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इफ कस्टमर purchases 50 books at the rate of ₹20 at the printed price, और कस्टमर उसको देखने के बाद क्या करता है बेटा, 50 बुक खरीदता है और जिसका कॉस्ट कितना है एक बुक का 20 रुपीज। फाइंड आउट हाउ मच बुक्स विल बी रिसीव बाय हिम, और वो कितना बुक अपने घर लेकर जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। In this question, what is the data is given? First thing, first rate of discount is given. Rate of discount, trade discount at the rate 10%. भाई कस्टमर क्या कर रहा है, 50 बुक्स परचेस कर रहा है एंड द प्राइस ऑफ द 50 each books is ₹20. Again, this is the cost price or market price or invoice price or selling price right now. Selling price are equals to 50 into 20. Okay, because the cost of each book are equals to 20, therefore ₹1000। भाई आपने उससे 20 बुक मांगा, दुकान वाले ने आपको 50 बुक मांगा, उसने 50 बुक आपको दिया। ठीक है, आपने पूछा कितने का है भाई, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच बुक, उसने जवाब क्या दिया, 20 रुपीज ईच। ठीक है, आपको पता चल गया आपको कितने रुपए देने हैं, 1000 रुपए पे करना, बिकॉज यू आर अ बायर, राइट। मगर आपको जब दुकान में घुस रहे थे तभी आपने देखा था कि 10% ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको इसका मतलब है कि आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, दैट मींस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आर इक्वल्स टू सेल्स इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। देयरफॉर 1000 into 10 by 100 are equals to ₹100। ठीक, यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। मगर आपको क्वेश्चन में पूछ क्या आ रहा है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स विल बी रिसीव्ड बाय कस्टमर और बायर, कितने बुक वो रिसीव करके जाएगा। ठीक है, 50 बुक्स तो उसने परचेस कर लिया, मगर उसके पास फिर से कितने रुपए बच गए, 100 रुपीज उसके पास फिर से बच गए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, 100 रुपीज की और बुक परचेस कर लेगा। क्लियर है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स परचेस फ्रॉम द बैलेंस ₹100, दिस इज द क्वेश्चन। How many number of books purchased on ₹100? That means कितने 100 रुपए में वो कितने बुक्स और खरीद लेगा। Number of books purchased are equals to what is the amount,
cost price of each book 20, right? Therefore 5 books, that means total number of books received by buyer are equals to 50 total plus 5 are equals to 55 books. क्लियर? तो आज का जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट ये था कि आपने कितनी बारीकी से उस थ्योरी को समझा. इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट on comment box of this video. Okay, thank you very much.